हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आपके चैनल जो खोलता है ज्ञान का ताला, क्योंकि आप देख रहे हैं विज्ञान पाठशाला। तो लास्ट लेक्चर में आपने जहां पे ख़त्म किया था, आज हम फिर उससे थोड़ा आगे बढ़ते हैं। तो लास्ट लेक्चर में हमने व्हीटस्टोन ब्रिज के बारे में जाना था। आज की लेक्चर में हम उसका एक एप्लीकेशन देखेंगे, दैट इज मीटर ब्रिज। So today we will going to start a topic called meter bridge. So इंट्रोडक्शन, मीटर ब्रिज क्या है? मीटर ब्रिज एक डिवाइस है जिसकी हेल्प से हम एक अननोन रजिस्टर का रेजिस्टेंस फाइंड आउट करते हैं। ठीक है, सो एक छोटा सा लाइन इसके लिए लिखा जाए तो वी कैन से इट इज अ डिवाइस which is used to find the resistance of unknown resistor. Okay, so how it looks like, कैसा ये डिवाइस होता है। प्रैक्टिकल भी आपको इससे करना है एक आपके क्लास 12th के फिजिक्स प्रैक्टिकल में। तो देखिए ये कैसा होता है। बेसिकली 3 मेटल स्ट्रिप से ये मिलकर के बना होता है। दीज आर मेटल स्ट्रिप्स। ये ऐसा आपको मेटल स्ट्रिप मिलेगा। ठीक है, थोड़ा और लंबा ले लेते हैं। ओके फाइन। उसके बाद मेटल स्ट्रिप के नीचे में यहाँ पे आपको एक स्केल दिखेगा। ठीक है, जिस स्केल के हेल्प से जहाँ पे मैं एक वायर माउंट करता हूँ। सो बेसिकली हियर यू विल सी वन वायर माउंटेड एंड लेंथ ऑफ दिस वायर इज मेजर्ड विथ अ स्केल जस्ट down this wire like this. It has numbers on it. This is 1 meter scale, that's why it is called meter bridge. So this is how much? 100 centimeter, or simply you can say 1 meter. ठीक है, and this combination is connected to battery and key. So here we have battery and one key like this. We have some dot in between this gap. It shows that the system have closed key. It means this system had been connected. If it was not over here, it means this battery is not connected to the system. So this is closed key, this is battery, this is a scale, and this one is 1 meter long wire. Okay, so we introduce 2 resistors in the gap between the metal strips. This one over here and one over here, naming it as R and S. This wire have resistance of R and this wire have resistance of S. Out of these two, one will have unknown resistance and other one is introduced with the help of resistance box. So इनमें से कोई भी एक हो सकता है जिसका हमें रेजिस्टेंस पता नहीं होता है। ठीक है, सपोज मैंने बोला कि ये आपका रेजिस्टेंस बॉक्स है, जो कि आप इंट्रोड्यूस करेंगे जितना भी रेजिस्टेंस आपको चाहिए, एंड दिस वन इज अननोन रेजिस्टेंस जिसकी वैल्यू आपको निकालनी है। ठीक है, एस हैज अननोन रेजिस्टेंस। ये मिडिल स्ट्रिप से कनेक्टेड एक गैल्वेनोमीटर आपके पास होगा, जो कि इस वायर पे हम टच करते हैं। ठीक है, अगेन आई एम सेइंग दिस सिस्टम वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ व्हीटस्टोन ब्रिज. What was the principle of Wheatstone bridge? When
zero current is flowing through galvanometer, then either side of the galvanometer resistance, the ratio of resistance in either side of the galvanometer is equal. ठीक है, suppose I am saying that I am getting zero deflection over here. Suppose this is at L distance from this point, so this much distance will be how much? This will be 100 minus L. The total length is 100. If this is L, this one will be 100 minus L. Okay, so I am writing the principle. It works on the principle of Wheatstone bridge. That is, when no current flows through galvanometer, R by S, ठीक है, will be equal to L upon 100 minus L. Okay, either side का ratio means R by L will be equal to S upon 100 minus L. ठीक है, इसे आप इंटरचेंज कर देंगे तो सेम वैल्यू आएगी. So from this formula, what I have to do? Just I have to check where I am getting zero deflection. Zero deflection, here I am not getting any kind of deflection. It means zero current is flowing through this galvanometer. Okay, मैंने चेक किया इस पॉइंट पे, there was deflection. चेक किया इस पॉइंट पे, again there was deflection. मैंने चेक किया इस पॉइंट पे, तो डिफ्लेक्शन जीरो हो गया. ये जो पॉइंटर है गैल्वेनोमीटर का, ना इधर हिल रहा है ना इधर हिल रहा है. इसका मतलब कि इस गैल्वेनोमीटर से कोई करंट फ्लो नहीं हो रहा. तो इस पोजीशन पे मैंने लेंथ को मेजर कर लिया. सपोज दिस वाज एल लेंथ, तो ये वाला लेंथ मुझे मिल गया 100 माइनस एल. और आर और एस में से किसी एक की वैल्यू पता होगा, दूसरे की वैल्यू निकालना है, तो हम इस फॉर्मूले की हेल्प से रेजिस्टेंस को निकाल सकते हैं. सो दिस वाज बेसिक डेफिनेशन एंड प्रिंसिपल एंड डायग्राम, एंड यू कैन राइट द कंस्ट्रक्शन बाय योरसेल्फ. ठीक है, मैंने आपको बता दिया ये मेटल स्ट्रिप्स है, ये 1 मीटर का वायर है, ये स्केल है, ये सर्किट है जो कि इस सिस्टम को एनर्जी दे रहा है विद द हेल्प ऑफ बैटरी एंड की. ठीक है, वन ऑफ द रेजिस्टेंस इज इंट्रोड्यूस्ड विद द हेल्प ऑफ रेजिस्टेंस बॉक्स एंड अदर रेजिस्टेंस वाज अननोन टू मी हुज वैल्यू आई हैव टू फाइंड आउट. Okay, so this was the basic principle of meter bridge. Please write down. Okay, if you had gone through this, please pause the video and write the statements. After that, we'll move for one question from NCERT. Okay, I am rubbing it. So here we have one question related to the above mentioned topic, that is meter bridge. Please note down this question and try to solve it. It is directly based on the formula that we have gone through. Please check it. So shall we proceed? आगे बनाना चालू करें. तो देखिए इस क्वेश्चन का मतलब क्या है. तो जैसा कि मैंने आपको बताया था, ये मेटल स्ट्रिप्स थे, यहाँ पे एक आर था रेसिस्टर, और यहाँ पे एक रेसिस्टर था एस. ठीक है, ओके. तो क्वेश्चन कहता है कि द नल पॉइंट इज फाउंड एट ए डिस्टेंस ऑफ 33.7 सेंटीमीटर फ्रॉम ए. सपोज ये आपका वायर था, ये पॉइंट ए है, तो इस पॉइंट ए से 33.7 सेंटीमीटर पे नल पॉइंट मिलता है. ठीक है, जब आपका रेसिस्टर क्या क्या है, आर एंड एस. तो फॉर्मूला लगाइए सीधा सीधा कि R by S will be equal to how much? L upon 100 minus L. So L is how much? 33.7. And what will be
100 minus L, that is 100 minus 33.7. So how much I'll get? I'll get 3 and 56 I think. इतना वैल्यू मिलेगा मुझे, ठीक है, सॉरी 56 और 66 हाँ। चलिए बहुत बढ़िया, ये एक क्वेश्चन हो गया, ठीक है, जैसा इसने बोला था आधा पोर्शन हो गया। अब क्या कह रहा है, नाउ अ रेजिस्टेंस ऑफ 12 ओम इज कनेक्टेड इन पैरेलल विथ एस। अब एक नया रेसिस्टर को लाया गया 12 ओम का, जो कि इस एस वाले के साथ पैरेलल में कनेक्टेड है, ठीक है। और जैसे ही मैंने ये 12 ओम का पैरेलल में एस के साथ लगाया, नाउ द डिफ्लेक्शन पॉइंट हैड बीन शिफ्टेड टू सम अदर पॉइंट दैट इज एट 51.9 सेंटीमीटर। तो जो पहले 33.7 पे था, अब वो शिफ्ट होकर के कहां पे आ गया है, 51.9 सेंटीमीटर पे, ठीक है। तो अगेन अब क्या होगा, फिर से वही फॉर्मूला R अपॉन S इज इक्वल टू 51.9 अपॉन 100 माइनस 51.9। तो यहां पे अब S इक्विवेलेंट की वैल्यू क्या है, पहले तो वो निकाल लीजिए, ठीक है। तो यहां पे ये दोनों पैरेलल में है, तो इसके कॉम्बिनेशन का टोटल रेजिस्टेंस कितना होगा। सो वी हैव फॉर्मूला 1 अपॉन S इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 1 अपॉन S प्लस 1 अपॉन 12, ठीक है। इसे सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा, 12S इज इक्वल्स टू S प्लस 12, ठीक है। ये 1 अपॉन S इक्विवेलेंट की वैल्यू है। तो यहां से सिंपली हम S इक्विवेलेंट की क्या वैल्यू बता सकते हैं, ये हो जाएगा 12S अपॉन S प्लस 12, ठीक है। ये वैल्यू आ गई हमारे पास S इक्विवेलेंट की। अब फॉर्मूला क्या था हमारा, R बाई S इक्विवेलेंट विल बी इक्वल टू 51.9 डिवाइडेड बाय 100 माइनस 51.9। तो ये कितना हो जाएगा, 48.1, ठीक है, क्लियर है। अब वैल्यू रखिए S इक्विवेलेंट का, तो ये क्या है, S इक्विवेलेंट की वैल्यू कितनी है, तो ये है 12S और यहाँ पे S प्लस 12 ऊपर आ जाएगा इज इक्वल्स टू 51.9 अपॉन 48.1, ओके। तो इसे और सिंप्लीफाइड फॉर्म में हम लिखे तो R बाई S, ठीक है, और इस तरफ लिख लेते हैं S प्लस 12 और नीचे में क्या है 12 इज इक्वल्स टू 51.9 डिवाइडेड बाय 48.1। बताइए यहां तक क्लियर है पॉइंट, ठीक है। अब देखिए यहां पे R बाई एस की वैल्यू आपने पहले ही निकाल के रखी है, ठीक है। तो ये पुट कर दीजिए, ये डायग्राम आपको समझ में आ गया होगा, इसे मिटा देता हूं यहां से मैं, ठीक है। तो अब वैल्यू क्या हो जाएगी, R बाई एस की जगह हम लिख सकते हैं 33.7 अपॉन 66.3 और ऊपर में क्या है S प्लस 12 अपॉन 12 इज इक्वल्स टू 51.9 अपॉन 48.1। यहां पे सिर्फ एक अननोन है S, इसकी वैल्यू आपको निकालना है, ठीक है। सिंपली आप निकाल सकते हैं, ये टर्म को इधर भेज दीजिए, ये क्या हो जाएगा, सिंपली हम बोल सकते हैं S प्लस 12 की वैल्यू हो जाएगी 51.9 इंटू 12 इंटू 66.3 अपॉन 48.1 इंटू 33.7, ठीक है। और 12 को इस तरफ भेज दिया तो ये क्या हो जाएगा 51.9 इंटू 12 इंटू 66.3 अपॉन 48.1 इंटू 33.7 माइनस 12, ठीक है। तो बस यही आपको करना था, ऑलमोस्ट आपके पास फिर क्या आ जाएगी, वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। तो इसे जब आप सॉल्व करेंगे तो आई थिंक आपके पास वैल्यू आएगी 25.47 के आसपास, ठीक है। इसमें 12 माइनस करेंगे तो S की वैल्यू कितनी आ जाएगी 0.4731। So the value of S will be 13.47 or simply you can say 13.5, ठीक है। अब ये वैल्यू यहां पे रख दीजिए,
ठीक है, इस इक्वेशन में रख दीजिए। इस इक्वेशन में जब s की वैल्यू रख देंगे तो r की वैल्यू आपकी निकल के आ जाएगी। ठीक है, तो r की वैल्यू जब आप सॉल्व करेंगे तो आएगी अप्रॉक्स में 6.86 या 87 के आसपास ओम में। तो इस तरीके से हमने अननोन रेसिस्टर्स की वैल्यू निकाल ली। दिस इज माय फाइनल आंसर। प्लीज नोट डाउन। ये एक क्वेश्चन जो मैंने आपको बताया ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी पूछा हुआ है और आपके एनसीईआरटी में भी पूछा हुआ है। कॉम्पिटिटिव एग्जाम में एग्जैक्ट आपके वर्ड्स के साथ नहीं है, बट आपके जो सीबीएसई के एग्जाम है उसमें यही क्वेश्चन 2 बार पूछा हुआ है। ठीक है, आप अपने सीबीएसई की बुक में जाएंगे तो ये इन टेक्स्ट आपका सॉल्व न्यूमेरिकल है, कर लीजिएगा, 1-2 बार प्रैक्टिस करिएगा। उसके बाद आपको चाहे आर के साथ सीरीज में दे दे या पैरेलल में दे दे या एस के साथ सीरीज या पैरेलल में दे दे, आप बहुत आसानी से ऐसे निकाल सकते हैं। ठीक है, तो प्लीज नोट डाउन दिस। हो गया होगा। तो आज के लेक्चर में सिर्फ मैं आपको इतना ही बताऊंगा। नेक्स्ट लेक्चर में फिर हम स्टार्ट करेंगे पोटेंशियल डिफरेंस के साथ। ठीक है, सॉरी नॉट पोटेंशियल डिफरेंस, सॉरी पोटेंशियोमीटर। तो पोटेंशियोमीटर और उसके 2 एप्लीकेशन के साथ हम नेक्स्ट लेक्चर में हाजिर होंगे और वो हमारा लास्ट चैप्टर होगा, लास्ट लेक्चर होगा इस पर्टिकुलर चैप्टर का। तो जुड़े रहिए, नेक्स्ट क्लास में फिर आपको ज़्यादा इन्फॉर्मेशन के साथ हम हाजिर होंगे। तो आज की क्लास के लिए सिर्फ इतना ही। थैंक यू।